سامعین محترم، سنی صحیح العقیدہ بریلوی حنفی مالکی شافعی حنبلی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وائس کو سمجھنے کے لیے 1.5-2 منٹ یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں ان کو سننا ضروری ہے۔ آپ حضرات ان کو سنیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ سامعین محترم، دیوبندی اسد کو ایک ہمارے پڑوس کے گاؤں کے مولوی ہیں، وہ لے کر کے آئے تھے اور بات ہو رہی تھی تقویۃ الایمان پر۔ اور تقویۃ الایمان کو جب میں نے ثابت کیا کہ فتاوی رشیدیہ میں آپ کے رشید احمد گنگوئی نے تقویۃ الایمان کو قرآن پر فضیلت دی ہے، اور اس سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو شخص کتاب اللہ پر دیگر کتاب کو فضیلت دے ان پر حکم شرع کیا عائد ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ پھر جب میں نے تقویۃ الایمان اور فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا تو ان کا پسینہ نکل آیا اور حوالہ مانگا، میں نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ آگے کے صفحہ بھیجیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ میرے پاس تھا لیکن میں نے دھیان نہیں دیا تھا، تو میں نے سوچا شاید میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے 1 دن کا ٹائم ان سے لیا کہ ٹھیک ہے ہم کل بھیجیں گے، لیکن تم فون اٹھانا، بھاگنا مت۔ سامعین محترم، میں کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے نکالا، اس کے بعد دیکھا تو میرے پاس آلریڈی پہلے سے حوالہ بھی موجود تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں حوالہ نکال کر کے ان کو بھیجا، لیکن حوالہ بھیجنے کے بعد جب دوبارہ کال لگایا تو جس نے مولوی اسد کو لے کے آیا تھا ان کا کیا کہنا ہوتا ہے ذرا آپ سماعت کریں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ اسکرین ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے ان کو حوالہ بھیجا تھا لیکن ان کی اوقات نہیں ہوئی کہ یہ بات کر سکے۔ دیکھنے کے باوجود الٹی سیدھی بکواس کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد وہ آڈیو لگا رہا ہوں۔ ہلو مولانا صاحب۔ ہلو، ہاں لیجیے وہ آپ کے مناظر کو۔ منور، ہاں پہلے اپنے کتاب پڑھ لو، اس کے بعد میرے کتاب کے حوالہ دو۔ ارے ٹھیک یار ہے، میں پہلے اپنی اپنے کتاب کیا کتاب کو پڑھ نہیں، ارے پہلے اپنے کتاب پڑھو، میں جو بھیجا ہوں کتاب پڑھ کے میرے کو بتاؤ۔ سنو اور دانت الحمدللہ کھولنے سے خبیث کا طریقہ مت پڑھاؤ کہ سنیے ہتھوڑا مارتے تو لوگ کو کتاب میں کیا دانت کھولنا بھی حرام ہے، تو کیوں کھول رہا ہے دانت؟ سنیے آپ جو سنے گا اعتراض، کیا آپ یار؟ جو اسکرین شاٹ سامعین آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ انہوں نے حوالہ مانگا تھا، میں نے حوالہ بھیجا، تو ان کو تو بات کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا اور رائے فرار اختیار کیا۔ سامعین جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آگے کے صفحوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بتائیں، یہاں پہ سوال کا جواب پورا ہونے کے بعد اپنی رائے پیش کر رہا ہے رشید احمد گنگوئی۔ دیکھیے جواب دینے کے بعد لکھا ہے واللہ تعالی عالم، کیونکہ جب جواب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ الفاظ کہتے ہیں واللہ تعالی عالم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جواب دے دیا ہے، آگے کی بات ان کا عقیدہ، ان کا قول ہے، لیکن یہ مانے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانے گا کہ یہ خود اپنے اکابرین کے کفر کو اٹھاتے اٹھاتے جہنم میں جا کے داخل ہو جائے گا، لیکن اپنے کافر مولویوں کے کفر کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خیر، ان کا مقدر ان کو مبارک ہو۔ تو سامعین محترم اب آڈیو سماعت کریں اور اپنے رائے کومنٹ باکس میں ضرور پیش کریں، اور جو میں سوال کیا اس کا جواب دیں آپ کہ کوئی اگر کتاب اللہ پر جو ہے غیر کتاب اللہ کو فضیلت دے اس پر شرعی حکم کیا عائد ہوگا؟ بس چھوٹی سی بات ہے، آپ مطمئن کر دیے، کوئی بات، ہم آپ سے لڑنے جھگڑنے میں تھوڑی آئے ہیں۔ کتاب اللہ، دیکھیے کتاب اللہ سے مراد اگر آپ کا قرآن ہے، ٹھیک، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، کتاب اللہ سے آپ مراد لے لیے کہ جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اللہ کا کلام۔ جی، میں بھی تو وہی کہا، کلام ہاں اللہ ہاں اور پھر حدیث رسول اللہ، ہاں میں نے بھی تو وہی کہا ہے تو نا، تو میں ہاں میں وہی تو جواب دے رہا جی ہوں۔ جی دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے مقدس اور سب سے افضل اور سب ہے نا جی اور قابل عمل جی قرآن کریم ہے۔ جی قرآن جی کریم کے مقابل میں دنیا کی کوئی کتاب اور کسی کی بات نہیں ہے۔ جی 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 بے شک دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نہ تو کسی بزرگ، نہ کسی خطوب، نہ کسی ولی اور نہ کسی بزرگ، نہ کسی عالم، نہ کسی امام استاد کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ہمیں عمل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے۔ قرآن میں اگر جو چیز ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، بس دنیا کی تمام چیزوں کو، ہر کسی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں مل جاتا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔
ताकि आप दुनिया के दूसरे तमाम लोगों के अकवाल को छोड़ देंगे। कि तीसरी चीज है इजमा है, जो हमारे बुजुर्गों के मुतवातिर अमल से साबित है, हम उसको तरजीह देंगे। हजरत आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। मैं आपसे जवाब तो ये हो गया। पूछ रहा हूँ, जो किताबुल्लाह यानी कलामुल्लाह पर, कुरान हाँ, मजीद पर किसी मौलवी की किताब को फजीलत दे, उन पर शरीय है जो है फतवा क्या आयद होगा, शरीय हुक्म क्या नाफिज होगा उन पर? किताबुल्लाह से अफजल से है ना, कुरान करीम से अफजल दूसरे कलाम को समझना है ना, शरीयत के रूह से जायज नहीं है। अरे हजरत, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप जवाब दीजिए कि आप उनका शरीय जो है उन पर शरीय हुक्म क्या आयद होगा, जो किताबुल्लाह को यानी कि नबी पाक यानी कि कुरान मजीद पर जो है किसी मौलवी की किताब को फजीलत देता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो शरीय हुक्म के एतबार से उनको क्या कहा जाएगा, शरीयत का हुक्म क्या नाफिज होगा उन पर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो। जी जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल आप समझिए सवाल मेरा क्या है। हाँ जी। हाँ जी, मैं भी तो कह रहा हूँ कि कुरान पर दूसरी किताबों को फजीलत देना सही नहीं है। ये उसका ये अमल है ना, जिसने ये अमल जो ये तरजीह दे रहा है, उसका ये तरजीह देना इंतहाई गलत है, गलत तरीका है। गलत तरीका है, मतलब यही इतना ही हुक्म लगेगा? जी इतना ही हुक्म लगेगा कि गलत तरीका है, जी, उसका बाकी ये को उसको अमल। मतलब वो गुमराह नहीं होगा, या कुफ्र जी का हक यानी वो गुमराह नहीं होगा, काफिर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस तरीका गलत है उनका? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका ये अमल का उसका ये अमल है ना हाँ। सभी है ना। जी जी अगर जो शख्स ऐसा अमल करता है, जी समझता है, उसके जी। ऊपर हुक्म ये लगेगा है ना हाँ, कि वो मोमिन नहीं है। ठीक है, चलिए माशाअल्लाह, वो मोमिन नहीं, ये हुक्म लगेगा ना हजरत। तो ये फतावा रशीदिया एक किताब है, रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं तक़वियतुल ईमान के बारे में, कि ये किताब नहायत ही उम्दा और इसका पढ़ना घर में रखना आईन इस्लाम है, हाँ रखना भी आईन इस्लाम है, और जो इसके रखने को कुफ्र बताए वो खुद काफिर है। तो हजरत, हमने तो कुरान मजीद के बारे में भी ऐसा कहीं नहीं सुना है, न कुरान की एक हाँ आयत हमने पढ़ी, ना किसी मुफस्सिर ने किसी आयत की तफसीर में ऐसा बताया कि कुरान का रखना हर घर में फ़र्ज़ ऐन है या ऐन इस्लाम है। लेकिन तक़वियतुल ईमान का घर में रखना आईन इस्लाम है, ये तो कुरान से बढ़ाया ना। तो फिर आपके फतवे के मुताबिक तो ये रशीद अहमद गंगोही तो फिर मोमिन नहीं रहा। सबसे पहले जी बात का हवाला दे दीजिए, सफा नंबर बतला दीजिए, ठीक है, अगर ठीक, एक मुझे मिनट रुकिए, वो मैं आपको किताब बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको भेज भी दूँ क्या? जी जी एक मिनट रुकिए, मैं आपको दे रहा हूँ मोबाइल। जी। क्या किताब का नाम बतलाया? फतवा रशीदिया। हाँ, फतावा रशीदिया मिलेगा, ये देखिए फतावा रशीदिया है, सफ़ा नंबर 80 है इसका। मैं इनको भेज दे रहा हूँ, इनका व्हाट्सअप चालू है ना, जो आपको लाइन पे लिया है, इनसे ज़रा पूछिए, जी जो आपको लाइन पे लिया है इनका व्हाट्सअप चालू है ना, पूछिए उनसे। मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं नहीं, जो आपको लाइन पे लिया है, क्योंकि जी उनका नंबर है मेरे पास, अगर वो व्हाट्सअप चालू किया तो मैं भेज दे रहा हूँ, वो आपको भेज देगा। जी ठीक है, भेज दीजिए, मैं देख लूँ पहले। देखिए, मैं आपको उनको भेज दिया। जी, बस मैं भी किताब निकाल ली और देख लेता हूँ। और देखिए, वो आपका भाई भी देखा, आपके भाई साहब भेजे क्या आपको? अगर नहीं मिल रहा है तो उनको बोलिए कि वो आपको भेज दे, ताकि आप देख लेंगे, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगता है ना, कि अगर अलग अलग एडिशन होती है तो फिर वो उसमें रद्द बदल हो जाता है। हेलो। जी जी। हाँ, वो किताब आपके तो भाई को मैं भेज मेरी दिया हूँ, आप उनसे निकाल बोलिए कि ली, भेज दिए वो आपको। लेकिन सफा नंबर 80 मुझे वो बातें नहीं मिल रही नहीं हैं। नहीं, आपको मैं आपके भाई को भेजा हूँ, आप उनसे मंगवा लीजिए ना, एडिशन अलग होगी तो नहीं मिलेगा ना वो आपको, अलग अलग जगह पर छपने से वो जो है रद्द बदल हो जाता है उसमें। जी जी, वो देख आप लेता हूँ। अपने भाई को बोलिए ना कि वो आपको भेज दे। जी जी जी, वो भेज दिए मुझे, देख रहा हूँ मैं। हाँ, देख लीजिए, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए।
मौलाना साहब, मौलाना साहब जी किससे बात करें? मैं मौलाना नहीं हूँ। जी जी हो। हाँ बताइए बताइए। इससे पहले वाला जो सफा आप मुझे वो भेजिए तो। जी इससे पहले वाला सफ़ा की मतलब क्या ज़रूरत है उसमें? नहीं, हम फिर सवाल भी तो देखें, सवाल करने साहिल ने क्या पूछा है, सिर्फ हम जवाब कैसे देख लें। अच्छा, ये पहला वाला सफ़ा तो इनके पहले वाला सफ़ा तो मेरे पास नहीं है, अभी किताब में जाके फिर निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसको। लेकिन सवाल कुछ भी करें, देखिए इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि नहीं नहीं, ये कितना। आप इबारत ज़रा हमको पढ़ के सुनाइए तो, जो लिखा है। मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी आपको बात सुनिए। सुनिए सुनिए, आपको वो भी भेज देंगे हम, लेकिन आप ज़रा इबारत पढ़ के सुना दीजिए, ठीक है? नहीं, मैं बात बिल्कुल पढ़ के सुनाऊंगा, हाँ पहले सुनाऊँ, मैं अरे यार फिर सवाल से सुनाऊंगा, सुनाऊँगा उसके क्या बाद होता में है जवाब यार, पढ़ के सुनाइए ना। सुनाऊंगा। हालांकि ये नहीं, इतना साफ शफाफ जो हम आपकी है। पाबंद है। हाँ मैं आपका जी देखिए, हालांकि इतना साफ सुथरा जो है लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आगे की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप जो है ऐसी बात करेंगे कि जिससे बात ही ना हो पाए आगे। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए गलत कहता हूँ कि आप बस। पहले पढ़ लीजिए, शायद लोग देख लें कि देखिए कि आगे की ज़रूरत है या नहीं है, लोग वो आवाम सुनेंगी ना। नहीं, वो आवाम क्या है? सवाल जवाब इंसान हमेशा सवाल को देख कर देता है। हाँ तो सवाल क्या किया गया है पहले हम वो देखेंगे, अरे उसके बाद सवाल जो जवाब भी क्या किया लिखा गया है, गया लेकिन जब हम वो जवाब उन्होंने, देखेंगे। चले आप जवाब ही तो पढ़ दीजिए। हम जवाब क्यों पढ़े? इसमें जवाब भी पूरे नकल शुरू से, जवाब भी शुरू से नहीं है, नहीं आधा अच्छा जवाब इधर अरे मतलब नहीं नहीं नहीं, जो पहली है दफा। जवाब शुरू से है, आप पढ़िए। हाँ, ये जवाब तो शुरू से मौलाना है। साहब सुनिए, मौलाना साहब ये तो ऐसे हो गया जैसे आप किसी को पाबंद करें, कुरान में निकाल के दे दें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तगफिरुल्लाह, तो मतलब ये कुफारा। आधी अधूरी इबारत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, आमीन। जब तक हम आगे पीछे पूरे नहीं नहीं देखेंगे, आगे ला पूछिए, तक़रबुस सलाह। सुनिए कोई सुनिए। पहले अरे यहाँ वो मेरी बात मिसाल ही, सुनिए पहले। हजरत यहाँ मेरी पे वो बात बात सुनिए आपकी बात पहले। नहीं बनेगी, यहाँ पे ला तक़रबुस सलाह पहले वाली मेरी बात बात आपकी यहाँ नहीं बनेगी। पहले मेरी इसलिए कि बात सुन लीजिए। जवाब पूरा है, यहाँ पे पूरा जवाब है। जवाब पूरा करना है। हाँ इस जवाब पूरा वास्ते है रुकिए, ये 12 से इससे पहले कुछ नहीं मैं है। आपको पढ़ के इस सुना दूं। वास्ते इससे पहले कुछ नहीं है। इस वास्ते से पहले कुछ नहीं है। सफा नंबर पर 80 पे लिखा हुआ, इस वास्ते इस साहिब निस्बत से ये लोग बेदाती नाखुश हो गए। इससे पहले कुछ नहीं है। आप मुकम्मल बात पूरा जो नकल किया गया है, पहले आप मुझे पूरे दिखाएं। मैं कहा था पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये तो ऐसा ही होगा जैसे कोई ला तक़रबुस सलाह से तो पेश कर अच्छा जा रहा चलिए ठीक है, है, आप ना जवाब में इसको है, पढ़ करके फिर ये इसे साबित धोखा कर देना दीजिए हुआ कि, ना। सुनिए सुनिए, आप इसको पढ़ के ये साबित कर दिए कि देखिए मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ऐसा ही होता है जैसा कि ला तक़रबुस सलाह है। आप इनको ऐसा ही साबित कर दिए पढ़ करके, ठीक है? तो अच्छा साबित कर दिए आप आप साबित पढ़ कर लीजिए, दीजिए। ये असम जो है असम इबारत मैंने जो आपको असद भेजी है ना, शरीफ आप पढ़ असद करके ला असद तक़रबुस सलाह साबित कर ला दिए इसको। अरे असद 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 ला तक़रबुस सलाम आप साबित कर दीजिए कि अरे आगे नहीं पीछे नहीं, ला जुमला की तक़रबुस जरूरत है, सलाह का साबित मतलब अरे कीजिए। होता है कि अरे बात वहाँ असद पूरी भाई, नहीं है। असद भाई, जी असद भाई, जी इन लोगों का कहने का मतलब ये है, जो सवाल जवाब होती है ना, हाँ। ये यूट्यूब पे डाला जाता है, इस वजह से इतना फड़फड़ा रहा है। आगे पीछे का अगर मांग रहा है तो उसका सवाल अरे सवाल आगे दो ना पीछे भाई का आप। हम दे देंगे, लेकिन तुम जान बचाने के लिए जो इतना कोशिश कर रहे हो तो जान जरा नहीं पढ़ के बचेगा, सुनाओ जान ना। नहीं बचेगा, जान तुम्हारी खतरे में अरे कैसे हमारे खतरे में है, हम पढ़ के सुना दें? हम पढ़ के सुना दें? सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। सुनो सुनो, मैं पढ़ के मौलाना सुना मेरी दूं। बात, आप मुझसे सवाल पूछे, अच्छा ये मौलाना आप बताइए, मुझसे मुसन्निफ सवाल का पूछ रहे कौल हैं। है या नहीं है, इतना बता दिए कि ये मुसन्निफ का अकीदा और कौल है कि नहीं है, जो बात यहाँ पे लिखी है। ये ये जवाब कैसे दोस्त मैं दे दूं जब तक मैं मुकम्मल सवाल सुनिए को नहीं सुनिए, देखिए पढ़ूंगा। आप मुकम्मल के और आप आड़ कैसे कोई में, मौका लगा सुनिए देंगे। मौलवी साहब, आप मुकम्मल की आड़ में खुद को बचा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि दोबारा फोन लगाएंगे आप उठाएंगे नहीं, बात ये है, नहीं मैं ठीक है? लगाऊं। अरे यार नहीं ये उठाएंगे यार। ये और मुझे अफसोस होता है कि अपने तरफ से कोई मफरूजा चलिए ठीक है, सुनिए इंसान सुनिए कर मेरी बात देते सुनिए, हैं। चलिए तो ठीक है, आपने बात को कैसे आज रखा यहीं पे किताब ख़त्म को कर, खुल सुनिए रखा अब इतनी आपसे मेहनत करी। मेरी बात सुनिए, अब मैं बात को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। इंशाल्लाह कल हम आपको अगले हवाला भेजेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? फ़ोन उठाएंगे ना, आप भागेंगे तो नहीं? अजीब अजीब उनकी तो पसेना उतर गई, फोन अरे उठाने की पखाना बात हमारा हो कैसे, रही तुम है। पढ़ नहीं पाए, अब तुम भाग रहे हो जान बचा करके। चलो ठीक है, तुमको मोहलत दे रहे हैं हम, चलो ठीक है, हम आगे वाला, हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अफसोस इसमें होता जरूर आगे की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई अगर ऐसा होता, मैंने अफसोस चैलेंज किया आपके मौलवी को कि ला तक़रबुस सलाह साबित कर दो, नहीं कर पाया। मैं ला साबित तो कर रहा तक़रबुस हूँ। सलाह साबित ही नहीं, ला तक़रबुस सलाह ये पूरी बात है या आधी बात है? और आपका मौलवी ला लिखता तकरबुस सलाह है पूरी बात कि है। ला लाजवाब तकरबुस किताब, सलाह मैं पूरी पढ़ के बात है। सुना दे रहा हूँ आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, ला तकरबुस सलाह पूरी बात है। आप इसको जुमला नाफिज साबित कीजिए तो। मैं आपको नहीं करेगा। मैं आपको नहीं, ला सुनिए तकरबुस सलाह सुनिए मुकम्मल जुमला सुनिए है या नहीं, सुनिए, पहले आप मुझे अरे बतलाइए। सुनो तो देखिए,
और ला नहीं, आपने जो बोला ला सुनिए तक़रबु सुनिए, सलाह मुकम्मल अरे जुमला है या नहीं? अरे सुनोगे, अरे मैं पढ़ के सुनोगे सुनाऊंगा। तो उस वक्त आप झूठ बोलते जा रहे हैं अरे हम पर। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, आमीन। हाँ आमीन, बिल्कुल। सुन, अब सुन। और किताब तक़वियतुल ईमान निहायत ही उम्दा किताब है। ये कौन कह रहे हैं? रशीद अहमद गंगोही साहब कह रहे हैं निहायत ही उम्दा किताब है, और वो हाँ रद्द शिर्क व बिदअत में लाजवाब है। इस्तदलाल इसकी हाँ बिल्कुल किताब और अहादीस से हैं। इसका रखना और पढ़ना और अमल करना आईन इस्लाम है, रखना भी आईन इस्लाम है। हालांकि कुरान हाँ के बारे में ये दावा नहीं है। आपके मौलवी कहते हैं तक़वियतुल का रखना भी आईन इस्लाम है, इसीलिए आपके फतवे से वो काफिर हो गया है। आप कितना जान छुड़ाए नहीं बचा पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल आपसे बात करूंगा और हाँ पीछे का हवाला भी दूंगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सुनिए, इसमें एक बात जो है आप कि जो इसके रखने आप को इबारत कुफ्र का जो बताए। सुनिए, हाँ, आप इबारत का जो मतलब बयान कर रहे हैं वो भी गलत बयान कर रहे कैसे है, हैं। कैसे बताइए अभी इस जरा, सिलसिले में आप बताइए। जब तक मुकम्मल पहले अरे सवाल सुनिए मेरे सुनिए, नहीं सामने मैंने जो भेजिए। मतलब गलत बयान किया जरा मुझे बताइए तो गलत साबित कीजिए। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अरे तो फिर अभी मैं इल्जाम आपके कैसे सामने कुछ लगाया आपने? बोलूंगा। मतलब पहले आप देवबंद इबारत देखिए, देखिए, इतना भी नहीं, उर्दू भी सुनिए नहीं सुनिए, समझते आप, अब क्यों अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ सुनिए तो सुनिए, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ना तो जाएगा सुनिए कीजिए, सुनिए समझ सुनिए, गए? हजरत तो कम हजरत से कम उर्दू भी पढ़ने का, उर्दू भी हजरत समझने की सलाहियत रखना हजरत कीजिए। तड़पने से कोई अच्छा, तो आप समझा दीजिए क्या मतलब है इसका जो मैंने पढ़ा है अभी। नहीं, आप पहले, मैं आपसे मुकम्मल बात करूंगा, तफसीली अरे बात करूंगा, मुकम्मल और तफसीली ही बात है। है ना? अल्लाह की कसम पहले उठाता आप हूँ मैं, सुनो, मुकम्मल अल्लाह की सवाल कसम, भेजिए और सुनो सुनो, मुकम्मल जवाब भेजिए, हजरत तब हजरत फिर मैं आपको बतलाऊंगा। हजरत अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि मुकम्मल इबादत जी क्या, मैं पूरी किताब अगर पढ़ लूँ और इसका मतलब अगर गलत, अगर आप अलग निकाल दिए जो मैंने आपको बताया, अगर गलत निकाल दिए, जिंदगी भर के लिए गुलामी कर लूंगा, ठीक ठीक है? है, आपके इंशाल्लाह। कदमों में गिर वक्त जाऊंगा अगर पूरी किताब पढ़ने के बावजूद भी जो मतलब मैंने बताया है कि रखना ऐने इस्लाम जो है, रशीद अहमद गंगोही ने बताया रखना ऐने इस्लाम है, और अगर आप पूरी हाँ किताब पढ़ के भी ये साबित कर दे कि यहाँ रखना मुराद नहीं है, तो मैं जिंदगी भर के लिए गुलामी करूंगा। आप करेंगे? हाँ करेंगे हाँ, मेरी गुलामी जिंदगी भर के लिए? जी जी, कसम उठाए, अल्लाह की कसम तेरी उठाए, करे करे तेरी ऐसी की तो कसम तेरे उठाए, पूरा नहीं करेगा। अल्लाह की कसम उठा, उठा अल्लाह की कसम, अल्लाह की पहले कसम उठा। मेरी बात सुन। अरे यार, अल्लाह की कसम उठा ना, डरता क्यों इतना? इसीलिए कहता हूँ आप बोल डींगे दिया मत मुझे, मारिए, डींगे मत मारिए, जहां तक है वहीं पे रहे, ज्यादा डींगे मारने से आप कुछ होता नहीं है। मुझे भी बोलने देंगे, खाली हाँ, बकते चले जाएंगे? अरे बोलिए बोलिए। आपको मालूम नहीं कि एक मुसलमान की बात सच्ची होती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अरे आपके सामने अरे, सुनी तो किसी आपने ने? अपने अकाबिर को काफिर बना दिया है यहाँ पे, और आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। कौन बनाया अपने अकादमी को आपने काफिर? बनाया कि जो किताबुल्लाह पर दूसरी के किताब को फजीलत दे वो मोमिन नहीं है। और यहाँ हाँ, रशी फतावा रशीदिया के लिखने वाले रशीद अहमद गंगोही तो तक़वियतुल ईमान को फजीलत दे रहे हैं कुरान पर। ये बात तो मैं नहीं कहा हूँ कि रशीद अहमद गंगोई काफिर है, जिसके पास अरे मुझे जो एक पढ़ाया है आपने कि मैं मुतलकन कहा है उसके जद में रशीद अहमद गंगोही आया कि नहीं आया? क्या क्या मतलब बयान कर देते हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। चलिए ठीक अफसोस है, होता है सुनिए, आपकी अगर सुनिए, जहालत कल पर। उठाएंगे ना, ये कल उठाएंगे जाहिलों ना, का राजा है, ये वो लोग जाहिलों सुन का लेंगे, राजा वो है। लोग सुन लेंगे कि देवभंगी कितने बड़े जाहिल होते हैं। अबू जहल भी ना इन पर रश्क करता जहालत के बिना पर कि यार मैं क्या था, ये तो मेरा भी अब्बा निकला। देवबंदियत को अगर वो देख लेते तो, या आज भी वो उनसे तेरा अब्बा मुलाकात हो जाए तो। नहीं, यही अब्बा है, यही समझ लो छोड़िए कि छोड़िए, हजरत सुनिए तकने सुनिए, वाले यही ओ तेरा अब्बा देवबंदी है। मौलवी साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए इंशाल्लाह कल आपसे बात करते हैं। मैंने कसम उठाया है, अल्लाह की कसम, अगर पूरी जी किताब पढ़ने के बावजूद भी अगर यहाँ पे रखना से मुराद कुछ और मतलब निकल आए या कोई निकाल दे, मैं जिंदगी भर के लिए उनकी गुलामी करूंगा। और अगर कोई देवबंदी अच्छा, है, सुनिए मैं हलाली आपसे एक है, बात और, तो वो देखिए कसम उठा के मौलाना कहे कि साहब, अगर वो साबित नहीं कर पाया तो वो मेरी गुलामी करेगा, या चल गुलामी नहीं अरे तो वो आपको दीन इस्लाम बचने को की कबूल कर आदत है क्या? लेगा। कोई इंजेक्शन तौबा लगा के करके, आए सुनिए हैं? ना, तौबा करके सुन्नियत को कबूल कर लेगा, बस ये कसम उठा ले वो, कि अच्छा, अगर वो आप मेरी इसको बात गलत सुनिए। साबित ना कर सका तो वो सुन्नियत को जो है कबूल कर लेगा, तौबा कर लेगा, इतना मुझे बस कसम उठा के बोल दे। ये बोले आप बचने की कोई इंजेक्शन लगा के आए हैं क्या? अरे यार, वो तो कौवा खोर लोग वैसे ही कर तो लग रहा है, दे। वैसे ही लग रहा है। अपने से हाँ लगाया देखिए, है, सुनिए, आपसे नहीं कह रहा हूँ, पहले मेरी उसी बात रशीद सुनिए। अहमद गंगोही आपने ने कहा कहा है, है कल मैं कौवा बात खाना करूंगा। सवाब है। अब कौवा सवाब मेरी समझ बात के सुनिए आप खाते पहले। हैं तो आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप दो चार कौवा खा लेंगे वही आपके बकने के लिए काफी है। ठीक है, अभी मैं फोन रख रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला कल आपको कॉल करते हैं, नहीं नहीं देखते नहीं हैं आप नहीं नहीं, उठाते कि रुको नहीं। रुको पहले मेरी रुको, बात नहीं 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 सुनिए, नहीं, फिर जवाब सुनो। दो। अरे फालतू टाइम, नमाज का टाइम हो आप गया पहले मेरी है। बात सुनिए। जवाब देखो। मैं ये अभी जो मैंने आप बोले, कहा, अरे अभी पहले मेरी बात तो सुन लो यार, दूसरों को से बकते चले जा रहे हो, क्या? बात करने का तरीका नहीं। अरे तो तुम्हें तरीका है, तुम जो बकवास करते हो, हम तो जवाब दे रहे हैं। जवाब हाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम, आप ये कह रहे हैं कि मैं कल बात करूंगा, मैं कल हाँ, बात नहीं कर सकता। कब करेंगे मुझे फिर? टाइम दे मैं दीजिए। तालिबे इल्म हूँ, मैं कब मदरसा में करेंगे, कल मेरी कब पढ़ाई। करेंगे? आप पता है कि आप इसको साबित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप डर के मारे अच्छा, बात ही नहीं जी, करेंगे। पहले ये जहां बात तक तो मेरा दसवीं की ख्याल है आप जिंदगी भर नहीं बात करेंगे इस मसले पर मुझसे।
आपने जब मैं बोलकर खामोश हो जाऊं फिर आप बोलिएगा। हाँ मेरी चलिए बात बोलिए, आप सुनिए। टाइम दे दीजिए, कब मैं आपको फोन लगाऊं? मैं उसी दिन लगाऊंगा जब आप टाइम देंगे, जिस दिन का। अभी करो, अभी करो। पहले बात तो अबे सुन लीजिए। अभी वही मैं वही मैं बतला अभी रहा हूँ, करो, काम अभी से करो, मैं आप किताब मुझसे से बात हवाला नहीं करेंगे, वही निकालूंगा तो मैं। बतला रहा हूँ। सुनो बोलते सुनो, जाइए अगर दमखम है ना जर्रा बराबर, जान तुम्हारे छोड़ा के मौलवी मत को भागो बोलो, फिर जैसी की चलो तैसी। तुम ये किताब जान पढ़। छोड़ के मत बस भागो। अबे हम भाग रहे हैं? सुनिए मेरी हम तो तुम्हारी जबान से तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई को मैंने जो है काफिर साबित करवा दिया, तुम्हारी जबान से। लोग सुनेंगे, खुद फैसला कर लेंगे। तुझे मनवाना नहीं है, पता है तू अबू जहल से भी 2 कदम बढ़ के है, तू मानेगा नहीं। तो तुझे मनवाने के आप लिए मेरी फोन थोड़ी बात किया है मैं। इसका मतलब है ना, तेरा सुन बाप लो। से भी 2 कदम मैं बढ़ के है ये, तुम्हारे समझा था? अब्बा अरे लोगों मेरी को, तो जो कदम बढ़ के है। आवाम है, जो लोग मैंने सुनते कहा हैं, है उनको यहाँ मनवाना है, उनको बताना है, उनको दिखाना है कि देखो सुनो ना, देवबंदियत का तो मकरू चेहरा कैसा है। तेरा बाप जो है ना, उससे भी सुनो 2 सुनो, कदम आगे है। मैं कल फोन करूंगा, अगर हलाली हो गए तो कल मेरा फोन रिसीव करोगे, और जो है पढ़ करके फिर इसको गलत साबित, मेरे बात को गलत साबित करोगे, अगर हलाली होगे तो। अगर हलाली नहीं होगे तो, अगर नहीं साबित करोगे, फोन नहीं उठाओगे, हम समझ जाएंगे, लोगों को बता देंगे कि इसने फोन नहीं उठाया, हम स्क्रीन वीडियो बनाएंगे कल आपको हवाला भेजने के बाद। बस रखता हूँ, अल्लाह हाफिज।